Yes, good morning, students. As you know that these days the topic which we are doing, that is laws of production, that is production function and laws of production. So yesterday we have done the topic that there are two types of laws of production. One is called returns to a factor and the second one is known as returns to scale. Okay? And as I told yesterday that returns to a factor that takes place in short period and returns to scale that takes place in long period. So we are not going to discuss anything related to returns to scale because that is not part of our syllabus, not the main syllabus as well as not in the revised syllabus. It's not required here. So we will be paying more attention to this returns to a factor. So now I told that returns to a factor take place when rest all other factors are kept fixed, no change takes place in other factors, they remain fixed, and only one factor of production that is replaced or that is changed. Means the change is brought only in the quantity of one variable factor, and let us suppose that variable factor is labor here. ठीक है, मान लेते हैं कि लेबर फैक्टर वेरिएबल फैक्टर है, मतलब जिसको चेंज किया जा सकता है, जिसके नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, दैट मीन्स वेरिएबल फैक्टर. तो अज्यूमिंग कि रेस्ट ऑल थिंग्स आर सेम, जो भी मशीनरी है, फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, लैंड है, एवरीथिंग इज सेम, नो चेंज इज पॉसिबल इन देम, only the producer can increase the quantity of his output, change the quantity of his output only by bringing changes in the quantity of variable factor. So then what can happen in the short period, since technology is constant, that means machinery, equipment, वो सारा कुछ same है, no changes there, only the quantity of variable factor is changing. ठीक है, तो क्या हो सकता है कि जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, that may increase, that may remain constant, same जितनी है उतनी, और that may diminish और decrease. तीन चीजें हो सकती हैं. ठीक, तो उसमें से हमने फर्स्ट टू yesterday we have discussed कि increasing return जब होती है, मतलब आउटपुट बढ़ता है with the application of more units of variable factor labor, then that concept is known as increasing returns to a factor. ठीक, then second concept we did, that is constant returns to a factor. That means by applying more units of variable factor, when total product increases at a constant rate and marginal product remains constant, that we have done as returns to constant returns to a factor. ठीक है जी, and today we are going to do diminishing returns to a factor. Yeah, the law of diminishing returns to a factor, as you can see, diminishing returns. Okay, so now what happens in this, firstly let me state, then I explain with the help of table and diagram. तो इसमें क्या होता है, as we increase the quantity of variable factor along with other fixed factors of production, then total product increases at a diminishing rate. आई एम रिपीटिंग, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, बढ़ता है, बट किस स्पीड से बढ़ता है, किस रेट से, किस रफ्तार से बढ़ता है, एट ए डिमिनिशिंग रेट, कम होती हुई स्पीड से बढ़ता है. ठीक, एंड ऑन द अदर साइड इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, तो देन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग. डिमिनिशिंग मतलब कम होना शुरू हो जाता है. तो आई एम स्टेटिंग द लाइन अगेन. In this law, as more units of variable factor are employed, then total product increases at a diminishing rate and marginal product starts diminishing. When this observation comes in front of us, then that law is known as law of diminishing returns to a factor. Now let us see in the form of a table. Suppose variable factor is labor. ठीक है, लेबर मतलब वेरिएबल है, लेबर की क्वांटिटी को कम ज़्यादा किया जा सकता है. तो लेबर, फर्स्ट यूनिट टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट, तो फर्स्ट वर्कर हैज़ बीन एम्प्लॉयड, तो वट एवर चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन टोटल प्रोडक्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स ओनली. इसने आके काम किया तो इसके आने से 10 यूनिट्स बन गए, मान लो किसी भी चीज़ की. तो सिंस इसके पहले कोई और लगाया ही नहीं, किसी और वर्कर को लगाया ही नहीं, तो जो कुछ भी इसने टोटली प्रोड्यूस किया वही इस पर्सन की, इस लेबरर की, वही सेम टू सेम उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उसने ही आके 10 यूनिट्स बनाए हैं. तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसके आने से प्रोडक्शन में, टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, अज्यूमिंग कि इसके पहले कुछ भी नहीं था, 0, तो 10 माइनस 0 10. ठीक, अब नाउ सेकेंड वर्कर लगा लिया. सेकेंड वर्कर के आने से टोटल प्रोडक्शन हो जाती है 18 यूनिट्स की. ठीक है जी.
तो अब क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन है 18 की, तो इस सेकंड वर्कर के आने से हाउ मच चेंज हैज टेकन प्लेस इन टोटल प्रोडक्ट, 18 माइनस 10 दैट इज 8। इसने आके 8 चीज़ें और एडिशनली बना दी हैं, ये इसका अपना कंट्रीब्यूशन है, इसकी अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है या मार्जिनल प्रोडक्ट है, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है। देन थर्ड वर्कर हैज़ बीन एम्प्लॉयड, तो उसके आने से व्हाट हैपेंस टू टोटल प्रोडक्ट, इट हैज़ बिकम 24, ये इतना हो गया। तो जब ये 24 हुआ, इफ वी वांट टू सी द दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस थर्ड फैक्टर ओनली, थर्ड लेबरर का देखें कि उसने क्या किया है, तो देन हाउ कैन वी असेस 24 माइनस 18 दैट इज 6 यूनिट्स। इस थर्ड वर्कर ने आके कितना अपना रोल प्ले किया है, कितनी चीज़ें बनाई हैं, इसने सिर्फ 6 चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। अब फोर्थ वर्कर लगाया, उसके आने से 28 टोटल चीज़ें बन गई। तो इस फोर्थ वर्कर की अपनी इंडिविजुअली कितनी प्रोडक्टिविटी है, हाउ विल वी कम टू नो, 28 माइनस उसके पहले 3 वर्कर्स की कितनी थी, 24, तो 28 माइनस 24 4। सिमिलरली फिफ्थ यूनिट ऑफ लेबर, पांचवा पर्सन लगा दिया, उसके आने से टोटल प्रोडक्शन हैज बिकम 30। तो इस फिफ्थ पर्सन की अपनी इंडिविजुअली उसकी कितनी प्रोडक्शन है, मतलब इसने आके क्या अपना योगदान दिया है, क्या कंट्रीब्यूशन किया है, तो इसके आने से सिर्फ 2 चीज़ों का डिफरेंस आया, 30 माइनस 28 2, ठीक है। आई नो यू नो द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, दैट इज टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। तो नाउ व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दिस टेबल, as more units of variable factor labor are being employed, total product is increasing but at a diminishing rate। कैसे हो गया diminishing rate, यहाँ पर कितना चेंज आया, 8 का चेंज आया, यहाँ पर कितना है, 6 का चेंज आया, यहाँ पे 4 का चेंज है, यहाँ पे 2 का चेंज है। हर बार टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, बट उसके इंक्रीज करने की स्पीड कितनी है, कितना कितना बढ़ रहा है, तो हर बार पहले से कम बढ़ रहा है, पहले से कम रफ्तार से, कम स्पीड से बढ़ रहा है। पहले 8 का डिफरेंस था, फिर 6 का, 4 का, 2 का एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ रहा है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। नाउ यू रिकॉल, इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या हो रहा था, वहाँ पे टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, और कांस्टेंट वाले में क्या हो रहा था, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रेट। यही तीनों का डिफरेंस है, रेट का डिफरेंस है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में बढ़ती हुई स्पीड से बढ़ता है, कांस्टेंट रिटर्न्स में कांस्टेंट स्पीड से बढ़ता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स में डिमिनिश होती हुई स्पीड, डिमिनिश माने कम होना, रिड्यूस होना, डिक्रीज करना, तो कम होती हुई स्पीड से ये बढ़ता है, ठीक। ऑन द अदर साइड व्हाट हैपेंस टू मार्जिनल प्रोडक्ट, ये लगातार कम होता जा रहा है, every time it is diminishing, marginal product is falling। तो ये किसका मार्जिनल प्रोडक्ट है, दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दिस लेबर। फिक्स्ड फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं है, वो तो जितना था उतना ही है, सिंस नो चेंज हैज बीन ब्रॉट इन दैट, तो उसका तो कोई मार्जिनल प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। मार्जिनल प्रोडक्ट किसका होगा, जो हमने वेरिएबल फैक्टर लगाया उसका मार्जिनल प्रोडक्ट है, और ये लगातार कम होता जा रहा है, ठीक। नाउ इफ वी शो द सेम थिंग इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, तो देन दिस 2 टाइप ऑफ डायग्राम्स वी कैन ड्रॉ। ये हमारे पास है, यहाँ पर लेबर, you have to write full word labor, here also on x axis labor, on y axis in first diagram total product, here we are showing marginal product, ठीक है जी। तो अब now if we plot these points, ठीक है, otherwise there is no need to use time in plotting only, मतलब directly we can draw the curve। so this type of shape of total product we will get, when we get this type of shape, that means TP, now you see TP is increasing, ऊपर को जा रही है ये लाइन, कब जा रही है ऊपर, दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग, बट इसके इंक्रीज करने की जो स्पीड है वो कम होती जा रही है। तो दिस टाइप ऑफ ऐसे फ्लैट सी शेप हमें मिलती है, दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रेट, विद टीपी इज इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट, ठीक। कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब इस टेबल के अकॉर्डिंग इफ वी ड्रॉ, तो इफ वी ड्रॉ दिस मार्जिनल प्रोडक्ट लाइन, किसकी मार्जिनल प्रोडक्ट या प्रोडक्टिविटी, लेबर की। Here we have subscribed L, L का मतलब लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, तो ये लगातार कम होती जा रही है। फर्स्ट यूनिट लगाया 10, सेकेंड यूनिट ऑफ लेबर लगाया उसने 8 चीज़ें बनाई, थर्ड यूनिट ऑफ लेबर लगाया उसने 6 चीज़ें बनाई, फोर्थ लगाया उसने 2 बनाई, एंड सो ऑन, जैसा भी हमने टेबल में लिखा है, ठीक है। इट इज कॉन्स्टेंटली इट इज फॉलिंग। तो जब ये ऐसा बिहेवियर होता है, इस तरह का रिलेशन आता है हमारे सामने, कब आता है, जब हम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंप्लॉय कर रहे हैं, तभी ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट होता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इफ दिस
result is visible to us, तो then what are the causes behind it? क्यों होता है ऐसे? ये तो हमने कह दिया कि ऐसे होता है, तो वो लॉजिकली क्वेश्चन में कम टू आवर माइंड, में नहीं, इट शुड कम टू आवर माइंड कि ऐसा क्यों होता है. तो उसके पीछे 2-3 रीजन हैं बड़े सिंपल से. फर्स्ट रीजन है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. ठीक है ना. ओवर यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है? ओवर यूटिलाइजेशन का मीनिंग है, लेट अस टेक एग्जांपल कि कोई फार्मर का एग्जांपल ले लेते हैं. तो फार्मर के पास एक गिवन पीस ऑफ लैंड है, जितना भी है, यू कैन अज्यूम एनी मेजरमेंट, 1 एकड़ है या 1 हेक्टेयर है, कुछ भी आप मान सकते हो. तो एक गिवन पीस ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड है उसके पास, वो फार्मिंग का काम करता है उसके ऊपर. तो वो जो लैंड है दैट इज ए फिक्स्ड फैक्टर. ठीक. अब वो फार्मर आप भी काम कर रहा है, तो वो देखता है कि मैं अकेला सारा काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने साथ और लोगों को लगा लूँ. जैसे जैसे वो और लोगों का अपने साथ काम करने के लिए और लेबर को लगाता है, तो इनिशियली क्या होगा, पहले प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसके बाद जितनी भी मैक्सिमम हो सकती थी आइडियल रेशियो पहुंचने तक वो मैक्सिमम हो जाएगी. अब वो फार्म, मान लो अब वो फार्म के ऊपर वो फार्मर 10 लोगों को लगा सकते हैं. 10 पीपल कैन बी एम्प्लॉयड आइडियलिस्टिकली, भी जितने रिक्वायर्ड है 10 ही है. 1 हेक्टेयर लैंड और उसके ऊपर 10 लोग काम बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं. मान लो कोई बिल्डिंग ही बनानी है, कुछ भी काम करना है लेबर का, कुछ भी. ठीक. तो अच्छा, अब अगर 10 के बजाय वहाँ पर 50 लोग लगा दिए जाए, 80 लोग लगा दिए जाए, 100 और ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा वो लेबर को लगाई जा रहा है, देन व्हाट विल हैपन? अब क्या होगा, ज़मीन कम पड़ जाएगी, उसके ऊपर काम करने वाले लोगों की जो नंबर है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है. मतलब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी वो पर्सन जो ओनर है, लैंडलॉर्ड है, वो लोगों को लगा रहा है काम के ऊपर. तो देन व्हाट विल हैपन कि फिक्स्ड फैक्टर उस ज़मीन के ऊपर वेरिएबल फैक्टर ज़रूरत से ज़्यादा आ गए. दैट मीन्स कि वो ओवर यूज़ हो रही है लैंड, उतने उसके ऊपर उतनी लेबर की ज़रूरत नहीं है, बट ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को लगा दिया. दैट मीन्स सिंस लैंड इज ए फिक्स्ड फैक्टर, नाउ ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर लेबर, इट इज़ गेटिंग ओवर यूटिलाइज्ड. ठीक है. ज़रूरत से ज़्यादा लोग जब लग गए, तो ज़मीन उतनी की उतनी, मतलब उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर ही धक्का मुक्की कर रहे हैं, उसके ऊपर ही वो लगे हुए हैं, काम कुछ नहीं होगा, उनका कॉम्बिनेशन खराब हो गया. जितने रिक्वायर्ड थे उससे ज़्यादा जब आ जाते हैं किसी जगह काम करने के लिए लोग, तो वो काम को कैसे डिवाइड करेंगे? डिवीजन ही ढंग से पॉसिबल नहीं हो पाएगी. देन उनका मैनेजमेंट करना, डिवाइड करना भी, तुम यहाँ काम करो, यहाँ करो, बड़ा मुश्किल हो जाता है. क्यों ये सिचुएशन आती है? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को हमने लगा दिया है जो रिक्वायर्ड नहीं थे. ठीक. तो सेम थिंग इज हियर. तो ओवर यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर हो जाता है. सेकेंडली, जो वेरिएबल फैक्टर है वो भी एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो पाता. आप अपना देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसा लें, इजी एग्जांपल, मान लो यू हैव टू मेक वन चार्ट फॉर क्लास डेकोरेशन. कुछ चार्ट आपने बनाना है, उस चार्ट के ऊपर मान लो 3 चिल्ड्रन, दे कैन डू द वर्क ईजिली. एक मार्जिन बना ले पेंसिल से, उसमें कलरिंग कर दे, एक बीच का कोई डिज़ाइन ड्रॉ कर दे, एक तीसरा बच्चा कुछ हेडिंग लिखने हैं, कुछ वर्ड्स लिखने हैं, वो लिख दे. तो 3 बच्चे काम कर सकते हैं मान ली 1 मिनट के लिए. ठीक. अब 3 बच्चों से ज़्यादा उस चार्ट के ऊपर आपको मैम कहे कि 30 बच्चे मिलके काम करो, तो अब आप सोचो 30 बच्चे, कैन दे डू सम वर्क ऑन वन सिंगल चार्ट पेपर? वो काम नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम डिवाइड कैसे करें कि कौन से बच्चे ने कौन सा काम करना है? पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि चार्ट एक फिक्स्ड फैक्टर हो गया, यहाँ पे लिमिटेड है, और उसके ऊपर काम करने वाले बच्चे ज़्यादा हो गए, वेरिएबल फैक्टर, तो काम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, रादर उन बच्चों को मैनेज करना ही मुश्किल हो जाएगा. दैट मीन्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम इज देयर, डिवीजन ऑफ लेबर बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. इट डज नॉट रिमेन सिंपल, क्योंकि एक्सेसिव हो गए हैं ना नंबर, तो इस करके मुश्किल हो जाता है. तो फिर क्या होगा? डिमिनिशिंग रिटर्न्स होती हैं. उसके बाद वन अदर इंपॉर्टेंट रीजन इज देयर कि जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, जब हम ये कहते हैं ना कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड, तो जो सारे वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते. मतलब जैसे हम कहें कि जितने हमने मान लो काम पे मजदूर लगाए हैं, वर्कर्स लगाए हैं, लेबर लगाया है, उन सबका जो काम करने की स्पीड है, एफिशिएंसी है, वो सबकी एक जैसी नहीं होती है. टू सम एक्सटेंट इट कैन बी सेम. मान लो कोई एक जैसी एज ग्रुप के हैं, एक्टिव हैं, एक जैसे ही एक्टिव हैं, वो तो हम चलो कह लें, कुछ पल के लिए तो हम कह लें कि हाँ भी एक जैसा काम कर रहे हैं, बट 100% उनमें सिमिलैरिटी नहीं होगी, बिकॉज एवरी पर्सन, ह्यूमन बीइंग, इज डिफरेंट फ्रॉम अदर. कि हो सकता है किसी की स्पीड काम करने की ज़्यादा हो,
किसी की काम करने की स्पीड उससे कंपैरेटिवली कम भी हो सकती है, कोई बहुत ही स्लो हो, कोई ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो, कोई बहुत तेज़ी के साथ काम करता हो, तो कोई मीडियम सा ही काम करता हो, ठीक ठाक सा करता हो। मतलब ये कि ऑल लेबरर्स दे कैन नॉट हैव सेम एफिशिएंसी लेवल, दे कैन नॉट हैव सेम प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि सबका गॉड की ओर से, ईश्वर की ओर से सबका नेचर अलग अलग है, एक जैसा नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो बट अच्छा, अब सोच के देखो, अगर उसकी जगह रोबोट हूँ काम करने के लिए, कि एक रोबोट ने इतना काम करना है, उनको पहले से ही कंप्यूटराइज्ड उनको उनका सेटिंग की हुई है उनके सिस्टम की, वो तो एक जैसा काम कर सकते हैं। एक रोबोट ने 10 चीज़ें बना दी जी, सेकंड ने बना दी, थर्ड ने बना दी, वो तो ठीक है, वो एक मशीन की तरह हो गया। बट जब हम व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स कभी भी बिल्कुल एक दूसरे के जैसे सिमिलर नहीं हो सकते हैं, सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है। तो क्योंकि लेबर फैक्टर जो है, वेरिएबल फैक्टर, वो एक दूसरे को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करता है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होता है। तो उसके करके भी आफ्टर सम एक्सटेंट अगर हम उनका नंबर बढ़ाते जाते हैं काम के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, जो रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स मतलब काम से होने वाले फायदे, प्रोडक्शन, तो वो पहले की बजाय दे स्टार्ट डिमिनिशिंग, कम होने शुरू हो जाते हैं। पहले तो फ़ायदा होता है, तो जब फ़ायदा होता है तो देन भी से इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहे हैं, फिर मैक्सिमम जितना हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल वो हो गया। उसके बाद फिर थर्ड स्टेज इज बाउंड टू कम व्हेन दिस प्रोडक्टिविटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ये होना ही होना है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम वेरिएबल फैक्टर के तौर पे हम लेबर को ले रहे हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। यहाँ पे यू विल गेट द क्वेश्चन, यू मे गेट द क्वेश्चन कि स्टेट दिस लॉ, एक्सप्लेन, एंड देन व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड इट। तो फिर आपने क्या करना है, फर्स्टली यू विल डिफाइन, यू विल गिव द स्टेटमेंट ऑफ द मीनिंग, देन यू शुड गिव एज पर द मार्क्स, फिर देन यू कैन गिव टेबल, डायग्राम, एंड देन 3 पॉइंट्स ऑफ रीजंस, वो आपने देने हैं। Yesterday I have sent all the three causes of all the three types of returns, वो आपको भेज दिए हुए हैं, you can check from that, because in your own book some explanation here or there you may find it difficult, so that is why I have sent the pics, you can take help of those, तो वहाँ पर आप याद कर सकते हो। I hope it is clear. So with this we have finished our topic, and tomorrow we are going to start this statistics part, last topic of our syllabus of PT3, that is measures of dispersion. कल ये शुरू करेंगे, so please get ready with your stats book, right? Thank you, Vital. Thank you all.